एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है एसएसबी क्वालिफाई करना, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। और इसी बीच हम आ गए हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के जाने माने मेंटर और कर्नल राय सर के पास, जो कि इस समय यहाँ पर एसएसबी के बच्चों को जो एसएसबी की तैयारी है उसको करवा रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को फाइनली सेलेक्ट करवाने में भी पूरी अपनी मदद कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसएसबी का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सर नमस्कार। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इसको एसएसबी को जो बोलते हैं वो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि तीनों सेनाओं का एक सिलेक्टेड establishments हैं in the various parts of the country. Generally one is for army, it is located in Allahabad, that is Prayagraj at the moment. Then there is one in Bhopal, central India, and then in southern India there is one at Bangalore. Then there is for northern India in Jalandhar. Similarly for Air Force, one is at Varanasi, Dehradun, Mysore and Gandhinagar. That is near Ahmedabad, Gujarat. सर ये तो सेंटर्स की बात हुई। Then there is also, I would say, for Navy also. Navy has got establishment in Bhopal. Services Selection Board, one of the boards is at Bhopal. Then at Bangalore also, Cochin, Visakhapatnam and Calcutta. These are the establishment, Coimbatore. These are the establishment, these services selection boards are located. उनका प्राइम एम जो होता है और इनका जो फंक्शनिंग है और जो प्रोसेस है वो 4 दिन का जो है इनके टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, देन those candidates who are screened in, they go in for the main test, and that is for the period of 3 days. That is on the first day they have the psychological test, consisting of so many subjects in that, so many schedules in that. Then there is group testing officers series and interviewing officer series in between. It continues from the first day onwards. So basically there are 3. One is the psychological test, number 2 is the GTO, that is group testing officer series, and then the interviewing officer. तो सर शुरुआत स्क्रीनिंग से होती है, स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? स्क्रीनिंग जो है वो आपके इंटेलिजेंस रेटिंग होती है, इनकी OIR का एक टेस्ट होता है, विच इज बेस्ड ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल. दीज आर द लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, just to see the average intelligence of that child or the candidate who has gone for this. Then there is a picture perception and discussion test, where picture is shown on the screen for a period of 30 seconds and the child is supposed to, or the candidate is supposed to write a story based on that, describe that on the that picture for about 4 minutes. They pen it down and then subsequently it is discussed. Based on his performance in these 2 tests, the candidate is then selected for the main test. He is selected for the main test. That main test continues for 4 days. The first day is a psychological test, as I said earlier. Then you have the group testing officer series for 2 days, and then final day it is a conference. Their performance is judged on that. They are told about the results. Yeah. तो सर कैसे तैयारी करवाते हैं इसके लिए? और इसमें सर एक चीज़ अक्सर देखी जाती है और बच्चों में ये ऐसा माना जाता है, बच्चे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी होती हैं, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्या आपके हिसाब से? देखिए, हिंदी जो कम्युनिकेशन तो एक बैरियर है। अगर बच्चा अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ठीक से तो ये तो बैरियर माना जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। लड़का अगर हिंदी में भी बोल रहा है तो देयर इज नो, हिज पर्सनालिटी इज बीइंग टेस्टेड, वेदर ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी डजंट मैटर, बट ही हैज टू बी, हिज पर्सनालिटी इज बीइंग असेस्ड, ही हैज टू कम्युनिकेट, ही कैन यूज द मिक्स्ड लैंग्वेज ऑल्सो। अगर वो बच्चा अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता है तो हिंदी में ही बोल ले अपना। उसकी जो व्यक्तित्व का जो चित्रण है, जो उसके पर्सनालिटी का जो असेसमेंट है, वो उसका जो आकलन होता है वहाँ पर कि है। तो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो बाइलिंगुअल बात कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, पर्सनालिटी देखी जाती है कि बच्चा ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। और सर कैसी तैयारी होती है आप लोग जब तैयारी करवाते हैं इसके लिए, तो क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं? हिज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
his every factor is taken into account. He is psychologically, physically, and even the lot of insight is given on the general awareness. His communication skills are developed here. So many factors are taken into account because once the child's development is there, personality development is there, his holistic development has to be seen. The holistic development I mean is that how does he communicate? What is his body language? How does he speak? How does he write? What is the level of his intelligence? What is the level of his knowledge? And more than that, does he have the leadership qualities? तो ये वो चीज़ें हैं जो एसएसबी के लिए ज़रूरी होती हैं। जहाँ तक बात रही एसएसबी के टेस्ट की या इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, तो उसमें देखा जाता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, स्पीकिंग स्किल है वो कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें देखे जाते हैं और इन्हीं चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। तो हमारे साथ थे कर्नल राय सर, जिन्होंने बताया कि एसएसबी की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों पर। I would also like to tell you here that the candidates, the aspirants, his passion about joining the armed forces, उसका जुनून और जज्बा कैसा है। जी देखिए, वो जुनून है उसमें नहीं है, वो क्या नौकरी के लिए आ रहा है या उसमें जुनून है वर्दी पहनने की, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वर्दी पहनेगा अपने बैटलफील्ड में वो लीड कर सकता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग इट टेक्स अराउंड फॉर NDA कैंडिडेट, it takes around 4 years to become an officer. 3 years training at the NDA and then subsequently at various academies in IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy. So that aspect has to be seen. Does he have that passion or not? Or he is joining just for the sake of joining service? तो एनडीए ज्वाइन करना या एनडीए क्वालिफाई करना सिर्फ एक सर्विस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। और यही चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसमें देखा जाता है कि बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मतलब वो बात करता तो कैसे करता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि उसके अंदर उस चीज़ के लिए, उस सेवा के लिए जज्बा और जुनून होना चाहिए, वर्दी के लिए जुनून होना चाहिए, जिससे वो बच्चा जब आगे बढ़े, आगे जाए तो देश सेवा के पीछे, देश सेवा में कभी पीछे ना रहे, देश सेवा से कभी भी वो किसी भी तरह से चूके नहीं। तो ये हमारे साथ थे कर्नल राय सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है और एसएसबी की तैयारी में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद। तो एसएसबी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चा कैसे बात करता है, कैसे खड़ा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके तौर तरीके कैसे हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर बच्चे के अंदर है, अगर बच्चे ने इसको डेवलप कर लिया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके साथ हेल्पफुल होते हैं। ये कहा जाए कि अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं तो चांसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर RK पांडे सर। इनसे बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करवाई जाती है।